Hello and welcome to all of you present here. Today I am going to discuss with you the second important chapter of political science under SST subject, and the name of the chapter is federalism. So what is the meaning of federalism, and how India is going to be considered as a federal country, and how federalism is practiced in India, all will be our focal point of this chapter. And since the CBSE asking the questions objective in nature, so line by line understanding of the chapter, line by line meaning of the chapter is very crucial, because any line of the book may be utilized for the formation of question. So I thought it is rather better to read out the chapter and make the explanation in simple sentences, that you may have the concept in your mind, which may be utilized for the solving the questions. So let us begin. What is the meaning of federalism? संघवाद का क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग देखते हैं. Prior to starting the chapter, let us have a look on the overview. In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy. So quite obvious, it is correct. In the previous chapter, we had studied the chapter power sharing, and in power sharing, we had seen that how democracy is running with the basic spirit of power sharing, whether it is going to be among the different organs of the government, that is known as the horizontal power sharing, or whether it is going to be the vertical division of power, whether it is going to be the power sharing among different social groups, or whether it is going to be the power sharing among different political parties. So democracy is such types of government where the voice of each and every citizens has to be taken into consideration, regardless of their caste, regardless of their number, regardless there of any aspect in the country. That will be the true democracy if every citizen is counted and taken into consideration in decision making of the government. So power sharing is also the spirit of democracy, and we had seen various forms of power sharing in the previous chapter. uh, Vertical division, then we had seen the uh, horizontal division. So the vertical division of power sharing is altogether known as the federal setup of government. Wherever in any country the vertical division of power is being practiced there, uh, it is central government, state government, or sometimes a local government in few countries. Then all these different units of the government have their own jurisdiction of governance, administration, revenue collections, and jurisdictions of administration. So we will try to understand all these things in chapter. But vertical division of power is also known as the federalism. It is also the form of power sharing. वी बिगिन बाई डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स. तो इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म को सिंपल सेंटेंसों में डिस्क्राइब करेंगे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर इट्स बेसिक theories on which any government may be called as a federal government. इसके क्या आधारभूत सिद्धांत हैं, और उसके बाद भारत में जो है फेडरलिज्म के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, और भारत में फेडरलिज्म को आज़ादी के बाद से कैसे प्रैक्टिस किया गया. तो आज़ादी के बाद से भारत में फेडरलिज्म का कैसे प्रैक्टिस हुआ, कैसे संचालन हुआ, और क्या क्या इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये हम लोग देखेंगे. Analysis of the policies and politics that has strengthened the federalism in the practice. और हम लोग यहाँ इस चैप्टर में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ कुछ ऐसी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मतलब यूज रूल्स सेटअप किए थे अपने शासन के दौरान, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, जिससे हमारा फेडरलिज्म जो है स्ट्रेंथन हुआ है. Towards the end of the chapter, we turn to local government, a new and third tier of Indian federalism. और चैप्टर के अंत में हम लोग एक लोकल गवर्नमेंट के भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट किसे करें. लेट अस बिगिन.
फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज रिटन व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है. Prior to this begin this chapter, let us have a look on the cartoon given in the left side. I am confused. What do we call the Indian government? Is it union, federal, or central? तो जब कभी भी हम यूनियन गवर्नमेंट का कभी नाम सुनते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट का सुनते हैं, तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट सुनते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, सेंट्रल क्या है. तो सबसे पहले हम इसी का मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं. लेट अस गेट बैक टू द contrast between Belgium and श्रीलंका that we have saw in the last chapter. तो लास्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग के लिए हम लोगों ने दो कंट्री का एग्जाम्पल लिया था कि कैसे दो डिफरेंट कंट्री श्रीलंका और बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्ट किया था. तो बेल्जियम जो था उसने एकोमोडेशन पॉलिसी अपनाई थी. डिफरेंट सोशल एथनिक ग्रुप्स को उसने मतलब उनका अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुआ था गवर्नमेंट में और सबका इक्वल से था, सभी की बराबर की हिस्सेदारी थी गवर्नमेंट में. लेकिन श्रीलंका में सियाला कम्युनिटी चूँकि मेजोरिटी में थी तो उसने वहाँ पर मतलब बहुसंख्यकवाद का पालन किया था. उसने वहाँ पर मतलब अपनी संख्या बल के आधार पर उसने दूसरी तरह का सेटअप किया अपना गवर्नमेंट का, जिसके चलते उसे काफ़ी लास्ट में नुकसान हुआ. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं. यू वुड रिकॉल दैट one of the key changes made in constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this power to the regional governments. तो बेल्जियम जो है उसमें एकोमोडेशन पॉलिसी अपनाएगी, एडजस्टमेंट की पॉलिसी अपनाई गई. सभी क्योंकि 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पर, डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे और जर्मन स्पीकिंग थे. तो अब शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर होते थे बेल्जियम में. स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर थे, लेकिन वो पावर कभी भी उससे विथड्रॉ बैक किए जा सकते थे. स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए परमानेंटली व्यवस्था नहीं थी. तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो था वो परमानेंटली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया बेल्जियम में. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. तो बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट क्षेत्रीय सरकारों को जो पावर मिलती थी दिए भी गए थे, वहाँ थी भी और दिए भी गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उसे वापस ले सकती, वो पावर का यूज़ नहीं कर सकते थे. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that we are no longer dependent on the central government. लेकिन जब उसने एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई, सभी क्षेत्रीय मतलब एथनिक ग्रुप्स को, सोशल कल्चरल ग्रुप्स को उसने जब पावर देने के लिए सोचा बेल्जियम में लोगों ने, तो 1993 में वहाँ उन्होंने एक ऐसा प्रोविज़न बनाया कि रीजनल गवर्नमेंट्स को बहुत सारे पावर मिले जो सेंट्रल गवर्नमेंट विथड्रॉ बैक नहीं कर सकती. उनको कॉन्स्टिट्यूशनली परमानेंट पावर मिली. अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस तरह से बेल्जियम जो था पहले वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, एकात्मक सरकार होती थी, बाद में वह संघीय सरकार है. तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, इसका भी मीनिंग समझेंगे. श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल practical purposes a unitary system where the national government has all the power. आज भी श्रीलंका में मतलब continues to be for all practical purposes unitary form of system. श्रीलंका में unitary form of government है और उसी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर है देश को चलाने का. देश की सत्ता फेडरल गवर्नमेंट में 3 स्तरों पर बटी रहती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट, नहीं तो 2 या 2 से अधिक लेवल पर बटी होती है. पूरे देश को एक आदमी नहीं, एक संस्था नहीं चला सकती, तो वो एडजस्टमेंट करने पर ही होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर रहेंगे तभी इस तरह की व्यवस्था चलेगी. तो यही फेडरलिज्म है, इसको देखते हैं. तमिल लीडर्स वांट टू श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. तो श्रीलंका में जो सिंहला कम्युनिटी थी उसने अपने हाथ में सत्ता चलाई. तमिल कम्युनिटी को उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं किया, उनको ऑटोनोमस रीजन्स में पावर नहीं दिए. तो फिर तमिल लोग चाहते थे कि हमें एक फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन सिंहला लोगों ने इसको कबूल नहीं किया था. उन्होंने अपना ही डोमिनेंस रखा, उन्होंने एकोमोडेशन नहीं किया बेल्जियम के जैसा, इसके चलते श्रीलंका में सिविल वार हुआ था.
Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. तो संघवाद या फेडरलिज्म एक सरकार का ही रूप है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक रूप है फेडरलिज्म। और ये एक सरकार का कैसा रूप है जहां पर देश को चलाने की जो शक्ति है वो एक केंद्रीय संस्था सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहेगी और फिर उसके अधीन बहुत सारे संवैधानिक यूनिट के अंदर रहेगी, जिसे आप स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पूरे देश को एक जगह से नहीं चलाया जाता है। पूरे देश को चलाने के लिए शासन दो स्तर पर बटा होता है। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और फिर उसके अधीन ही होती है, लेकिन उस अधीन होते हुए भी उनको बहुत सारे अपना कुछ पावर्स होते हैं, तो वो उसको हम कंस्टिट्यूएंट यूनिट कहते हैं, उसके अधीन अंग कहते हैं, उसको भी पावर रहता है शासन चलाने का। यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सामान्यतः फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो स्तर की सरकारें होती हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो एक जो सरकार होती है वो पूरे देश का शासन चलाती है और उसके हाथ में पूरे देश के लोगों का एक समान मतलब उसमें उनका हित जुड़ा रहता है, उस पर वो कानून बनाती है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। और दूसरे जो स्तर की सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रांतीय सरकार होती है, जो अपने दैनिक प्रशासन को अपने हिसाब से वो चलाती है, दिखती है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन करने का अपना क्षेत्र होता है, अपना विषय पर वो कानून बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना शासन का क्षेत्र होता है और वो अपने विषय पर कानून बनाती है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अल्टीमेटली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक मैप है, आप देख सकते हैं, और इस मैप में आपको दिखाया गया है कि दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। 2002 का ये रिपोर्ट है, और इसमें दिखाया गया है कि वर्ल्ड के 193 कंट्रीज का डाटा है, उसमें 25 कंट्रीज में ही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। देयर सिटीजन्स मेक अप टू 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 25 कंट्रीज में ही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन इसका पॉपुलेशन 40% तक होता है, लगभग आधे से थोड़ा कम। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन। तो संसार के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप? एक बड़ा कंट्री है जहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो है चाइना। तो रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जितने भी बड़े बड़े देश हैं फेडरल कंट्री है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फिर यूरोप में है, जर्मनी में भी है, बेल्जियम में है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन में है, साउथ अफ्रीका में भी है। In this sense, federation are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, तो फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो, अच्छा, अब आइए। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद इन यूनिटरी गवर्नमेंट्स। Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central governments. तो इस तरह से हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होते हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग होते हैं। तो फिर फेडरेशन गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहाँ कहीं भी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर या तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या उसके अधीन कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट होती हैं, उसके अधीन होती हैं, उनको अपना खुद से शासन चलाने का पावर नहीं। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, एकात्मक सरकार जहाँ जिस देश में होती है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल होती है और वही सारे देश का डिसीजन लेती है, शासन चलाती है। अगर उसके अंदर कुछ यूनिट्स होते भी हैं तो उनको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही काम करना पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट्स। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाकर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर सकती है।
स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को हर माने में तो नहीं, लेकिन कुछ माने में उनको अपने पावर्स रहते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ऐसा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, और वैसा वो कानून बनाती है अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती है कि आपने ऐसा क्यों कानून बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा वहाँ पर सेटअप ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। क्योंकि देश का शासन दो या दो से अधिक स्तरों पर जहां बटा रहता है उसी को हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये डेमोक्रेसी की बातें हो रही हैं, डेमोक्रेसी में ये सेटअप चलते हैं। तो डेमोक्रेसी में शासन जनता के लिए होता है, जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है। तो जनता को जवाबदेह होना पड़ता है गवर्नमेंट्स को। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो किस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहेंगे, इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। क्या प्रमुख लक्षण है? देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कहीं भी देश में अगर गवर्नमेंट है तो उसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तभी कहेंगे जब देश को शासन चलाने का लेवल जो है, स्तर है, दो या दो से अधिक हो। Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation, and administration. तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, लेकिन हर लेवल की गवर्नमेंट को अपना अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन मतलब अपना अधिकार क्षेत्र होता है स्पेसिफिक मामलों में, जैसे कानून बनाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार और शासन चलाने का अधिकार। लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो कानून स्टेट गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, और स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी अपने अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों में, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। दोनों के अलग अलग विषय होते हैं, उसी पर वो कानून बनाती है। टैक्स भी उसी हिसाब से लगा सकते हैं। Third क्या लक्षण? The jurisdiction of the respective level of or tier of governments are specified in the constitution. So the existence and the authority of each tier of government is constitutionally granted. तो federal system of government में they have own jurisdiction in the matter of legislation, taxation and administration. और ये जो अधिकार क्षेत्र है ये संविधान में वर्णित होते हैं। संविधान में ये लिखा रहता है कि किस मामले में कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, और किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को हो, और किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट को है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड होता है, इसलिए उन दोनों के लेवल के गवर्नमेंट के बीच में कोई मतलब इंटरफेयर की बात नहीं होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है। चौथा, ऐसे इंटरफेयर होते रहते हैं कि अगर स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट रही है और सेंट्रल में दूसरी पार्टी की सरकार रही है तो बहुत कुछ होता है, हम लोग आगे इंडिया में देखेंगे। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अधिकारों का वर्णन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार हैं, तो फिर इन अधिकारों को चेंज करने का या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का पावर भी किसी एक लेवल के गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। अगर संविधान में लिखी हुई किसी बात को परिवर्तित करना है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर होना चाहिए, तो ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट की सहमति से ही कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह के प्रोविजन में चेंजेस लाए जा सकते हैं। पांचवा क्या है? कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पावर का मेंशन है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है मेंशन है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से नहीं कर सकता है कि भाई ये इसमें संविधान में ऐसी बात लिखी हुई है और इस तरह से कानून बनाना है, तो मैं समझता हूं कि ये कानून इस तरह से बनेगा। या स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि हमको इस विषय पर कानून बनाना है तो इसका मीनिंग ये हुआ।
संविधान में जो प्रोविजंस हैं, उनके जुरिडिक्शंस जो हैं, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का, इसकी व्याख्या केवल कोर्ट ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी व्याख्या कर सकता है कि संविधान में जो इनके पावर के बारे में जो जी बातें लिखी हुई हैं उसका सही सही मीनिंग क्या है और किस तरह के कानून बनने चाहिए। The highest court acts as an umpire if disputes arises between different level of governments in the exercise of their respective powers। और अगर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर कभी मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी विवाद हो जाता है, तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की काम करता है और वही डिसीजन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय सही था कि स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय सही था। 6. Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट चलेगी, उसके लिए पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट चलेगी, उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे रेवेन्यू से आते हैं, टैक्स से आते हैं। तो संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर टैक्स लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर टैक्स लगाकर अपना संसाधन रिसोर्स कलेक्ट कर सकती है। 7वां, द फेडरल सिस्टम दस हैड डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के दो उद्देश्य क्या हैं? टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो थोड़ा देखने में लगता है, इट सिम्स क्लियर कि जो क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, जो देश बहुत बड़ा होगा, वहाँ एक लेवल, एक जगह से शासन चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए फेडरल सिस्टम होता है। यहाँ जहाँ रीजनल डाइवर्सिटी होगी वहाँ फेडरलिज्म अच्छा सक्सेस करेगा। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है कि देश के यूनिटी और देश की सुरक्षा को कायम रखना और एकता को आगे बढ़ाना, while at the same time accommodate रीजनल डाइवर्सिटी। और देश के अंदर जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो देश के अंदर अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो लोग रहते हैं, रिलीजियस ग्रुप के जो लोग रहते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बना रहे। तो जिस देश के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वहाँ सिंहला कम्युनिटी थी और वहाँ आपका तमिल कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन भी थे, लेकिन सिंहला ने अपना डोमिनेंस किया है, उन्होंने वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पालन किया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन अगर हम रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल एस्पेक्ट को देख करके अगर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट फॉलो करते हैं तो वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जिससे देश की यूनिटी भी आगे बढ़ती है और देश सुरक्षित भी रहता है। तो दो तरह के इसके उद्देश्य हैं, टू प्रमोट एंड द सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी को, एकता को बचाना भी है और उसे आगे बढ़ाना भी है। एकता को कायम भी रखना है, सुरक्षित रखना है और उसे आगे भी भविष्य में बढ़ाना है। देश टूटे नहीं, देश खंडित न हो, उसमें फेडरलिज्म सहयोग करता है, उद्देश्य है। और दूसरा है कि देश के अंदर जो विविधता है उसको वो सामंजस्य बैठाता है। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing। तो इसीलिए दो पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं फेडरलिज्म या संघवाद के संचालन के लिए। किसी भी देश में, अगर किसी देश में संघवाद चलता है तो दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वहाँ पर। दो उद्देश्य तो हम देख लिए। पहला उद्देश्य है कि एकता सुरक्षित रहे और एकता बढ़े, और दूसरा है कि रीजनल डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन हो, सामंजस्य हो। तो इस परिस्थिति में दो पक्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर शेयरिंग में सहमति हो। ऐसा नहीं हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि मेरे ज़्यादा पावर चाहिए, मैं इससे कम पावर नहीं लूँगा, फेडरलिज्म सक्सेस नहीं होगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और दोनों स्तरों की सरकारों के बीच में भरोसा होना चाहिए कि हम लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेंगे। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो एक आदर्श संघवाद वही होता है जहां पर एक दूसरे पर भरोसा होता है और एक दूसरे के साथ रहने की सहमति होती है। नहीं तो अगर एक दूसरे पर भरोसा ना हो, सहमति नहीं हो, तो कभी भी कोई उस देश का कोई पार्ट कहेगा कि हमारा इस देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा देश का विकास नहीं हो रहा है, हम अपना अलग देश बनाएंगे, खंडित हो सकता है, टूट सकता है। तो
म्यूचुअल ट्रस्ट भी हमेशा कायम रखना पड़ता है, लिव टुगेदर रहने की उनके बीच में सहमति। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. तो विश्व में तो हम लोगों ने देखा, अभी 193 देशों का डाटा में मिला था, तो 25 देश फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाए हैं, लेकिन एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में मतलब जो है पावर बैलेंस अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वहां पर फेडरल सिस्टम ऑफ सेटअप ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण हुआ कैसे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, उसमें वहां पर उसका जन्म कैसे हुआ फेडरलिज्म का। जिस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वहां उसका जन्म हुआ होगा, उस तरह का फेडरलिज्म वहां चलेगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। तो विश्व में जो 25 देशों का हम लोग डाटा देखें कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर फेडरेशन का निर्माण दो रास्ते से, दो तरीकों से हुआ है। कौन कौन है? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स सो दैट by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक बड़े स्टेट का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अपनी संप्रभुता को एक साथ ला करके और अपनी पहचान को कायम रखते हुए, उस तरह के संघवाद को हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए में 50 राज्य हैं, हम लोग जानते हैं। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर का फेडरेशन सेटअप हुआ है। वहाँ पर छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, यूनिट्स थे, वो एक साथ आकर के एक बड़े यूनिट का निर्माण किया, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया, छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन उन्होंने अपनी संप्रभुता को एक साथ मिलाकर रखा और अपनी पहचान भी कायम की। In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vice versa the federal government. तो कहने का मतलब कि जो कमिंग टुगेदर होता है, इसमें जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट का निर्माण करते हैं, इसमें जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, ये सभी इक्वली पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो तो इसी बात पर ही आपस में मिलेंगे कि भाई हमारी जो शक्ति है वो कम ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्ति ना मिले, तभी हम लोग एक साथ रहेंगे। क्योंकि हमें अपनी पहचान भी कायम रखनी है और अपना ऑटोनॉमी भी कायम रखना है। हम लोग अपना ऑटोनॉमी एक साथ ले आ रहे हैं, संप्रभुता को एक साथ ला रहे हैं, क्योंकि कंट्री में अब हम लोग एक बड़ा कंट्री बना रहे हैं, लेकिन पहचान तो अपना कायम रखेंगे। तो हमारा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कम नहीं होना चाहिए। तो कमिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो भी इक्वल पावरफुल होते हैं और फेडरल मतलब ये स्ट्रांग होते हैं। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. और जो कमिंग टुगेदर के अलावा जो दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग मैंने पकड़ के रखना। जब कोई बड़ा देश अपने रीजनल डाइवर्सिटी या अपने बड़ा क्षेत्रफल को देखते हुए चाहता है कि सभी यूनिट एक साथ एक ही देश के अंदर रहें, होल्ड करें एक दूसरे से, तो वो अपने पावर को अपने अधीन स्टेट गवर्नमेंट्स में बांट देता है, और इस तरह के जो फेडरेशन तैयार होते हैं इसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े यूनिट्स थे, लेकिन इसमें बहुत रीजनल डाइवर्सिटी थी। डर था कि कहीं ये लोग टूटकर अलग देश न बना लें, अलग राष्ट्र न बना लें, इसलिए इन लोगों को कुछ पावर्स दिए गए ज़्यादा, ताकि वो एक साथ जुड़े रहें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहें, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ज़्यादा पावर मिले, ताकि ऑटोनॉमी का वो एक साथ होल्ड किए। लेकिन कमिंग टुगेदर जैसे ज़्यादा पावर उनको नहीं है। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इक्वली पावरफुल होती है, और जो होल्डिंग टुगेदर है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो अपने पावर को डिवाइड करके कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स को देती है। और इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जांपल हैं। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वर्सेस द स्टेट्स। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बनिस्बत ज़्यादा पावरफुल होती है।
स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पावर होती है, अपना भी जुरिडिक्शन होता है कानून बनाने का, टैक्स लगाने का, प्रशासन चलाने का। लेकिन कुछ एक्सट्रीम पोजीशन में, कुछ स्पेशल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ही ज़्यादा पावरफुल रहना, या सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन कमिंग टुगेदर में तो चूंकि अब हम दोस्ती करके एग्रीमेंट करके आए हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्रीमेंट के बेस पर होता है, सहमति के आधार पर होता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वली पावरफुल होती है। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पावर होती है होल्डिंग टुगेदर में। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। बहुत सारे फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है, जिसको स्टेट्स या प्रांत कहते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होते हैं, वेरी करते हैं। ये जो इंडिया के केस में हम लोग देखने को मिलेगा कि इंडिया में कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस थे, जैसे जम्मू कश्मीर को अभी तो नहीं है, फिर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस है कि वहाँ पर वो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट या देश के अन्य व्यक्तियों को वहाँ पर हर चीज़ नहीं कर सकता है, न बच सकता है, न जमीन खरीद सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं होते, वेरी भी करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। कमिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वली पावर होता है, और कभी कभी तो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ पावर मिलते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली पावरफुल होती है। Some Nepali citizens were discussing the proposal of the adoption of federalism in their own new constitution. This is what some of them said. Khagraj, I don't like federalism. It would lead to reservation of seats for different caste groups as in India. तो नेपाल में नया संविधान, जो नया प्रपोजल ऑन द एडॉप्शन ऑफ संघवाद की सरकार संघीय व्यवस्था कायम करने जा रही थी उनके नए संविधान में, तो किसी ने कहा कि जो नेपाल में नया फेडरलिज्म जो सेटअप किया जा रहा है, मैं यहाँ फेडरलिज्म गवर्नमेंट नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ इंडिया जैसे ही बहुत सारे लोगों को सीट्स रिजर्व करने पड़ेंगे। सरिता कतिया, आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म। सरिता कतिया, हमारा नेपाल बहुत छोटा सा देश है और हमें यहाँ फेडरलिज्म की ज़रूरत नहीं है। नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन रिसेंट ईयर में वहाँ पर राजतंत्र ख़त्म हो गया और अब वहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बने और गवर्नमेंट्स बनी। तो वहाँ उसी का एक उदाहरण लेकर दिखाया जा रहा है कि वहाँ के नागरिकों में किस तरह के विचार है फेडरलिज्म को लेकर। एक व्यक्ति कहता है कि हमें खागराज कहता है कि मैं यहाँ नेपाल में जो नया संविधान बना है और यहाँ जो फेडरलिज्म को लागू किया जा रहा है, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इक्वलिटी वाली बात नहीं रहेगी, कुछ लोगों का सीट रिजर्व कर दिया जाएगा। तो सरिता कहती है कि हमारा देश तो छोटा है, यहाँ तो बड़े देश जैसा हमारा देश है ही नहीं, तो यहाँ तो फेडरलिज्म की जरूरत ही नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट ठीक है। बाबूलाल कहते हैं, आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन बाबूलाल जो तराई क्षेत्र में रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी तो हमारे जो तराई क्षेत्र स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगा, तो कुछ यहाँ का विकास होगा। राम गणेश कहते हैं, आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर्स दैट वी आर अर्लियर enjoyed by the king will now be exercised by our elected representatives। तो राम गणेश कहते हैं कि मैं फेडरलिज्म को पसंद करता हूं, क्योंकि अब जो देश के शासन चलाने का पहले शक्ति राजा के हाथ में हुआ करती थी, एक आदमी के हाथ में केंद्रित थी, अब वो हमारे चुने हुए शासकों के अंदर में समाहित हो जाएगी और कोई हमारे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। तो हर लेवल पर चुने हुए लोग शासन करेंगे। If you were participating in this conversation, what would you be your response to each of these? Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is? What makes India a federal country? तो इसमें फेडरलिज्म का जो आइडिया है किसका गलत है? जैसे खागराज कहते हैं कि ये कुछ सीट्स रिजर्व करने पड़ेंगे डिफरेंट कास्ट के लिए, जैसे इंडिया में होता है। तो इनका फेडरलिज्म का ये एक गलत नोशन है, आइडिया है। फेडरलिज्म में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है, और रिजर्वेशन तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए वो बने हुए हैं। और इस तरह से ये डिस्कशन है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री कहा जा सकता है?
We are all Indians. We are living in the country. We also know that there is central governments and all the states have their own state governments. There is it may be that in central government is under BJP, but few states may be not under BJP. Different parties may be running in the different states. Uh, but there is also another government, that is local government, and here it is going to be Bihar election, Panchayat Chunav. So local government is being formed. So all three levels of government are existing in इंडिया. तो इंडिया तो फेडरल कंट्री है ही, लेकिन अब हमारे बुक में इसके बारे में क्या लिख रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट कहलाने के लिए, फेडरल कंट्री कहलाने के लिए वहाँ क्या क्या होना चाहिए. अब देखते हैं. वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी. तो अगर किसी देश में डाइवर्सिटी होती, एथनिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत विविध तरह के लोग अगर रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी को रन करने में, एडजस्ट करने में. और श्रीलंका और बेल्जियम के केस में हम लोग देख ही चुके हैं, इसलिए पावर शेयरिंग चैप्टर में पहले बार में पढ़ा था. व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स. तो भारत जैसे जब छोटे छोटे देशों में इतनी समस्या आ गई, श्रीलंका और बेल्जियम में, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है. तो इस देश में जहाँ इतनी विविधता है भाषा की, धर्म की और क्षेत्रों की, तो फिर यहाँ पर क्या पोजीशन होगा. व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री. हमारे देश में पावर शेयरिंग, क्योंकि वर्टिकल पावर शेयरिंग ही तो फेडरलिज्म कहलाता है, तो कैसे यहाँ पर मतलब ये पावर शेयरिंग को एडजस्ट किया गया, कैसे अडॉप्ट किया गया. लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग पहले संविधान को देखते हैं. इंडिया हैज इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. तो भारत जो है आज़ाद हुआ 1947 में अंग्रेजों के शासन से, और इसके लिए काफ़ी खूनी संघर्ष हुए, और फिर देश की आज़ादी के साथ देश को पार्टीशन भी झेलना पड़ा. पाकिस्तान अलग देश बना. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री. आज़ादी के समय अंग्रेजों ने राजवाड़ों को भी ये स्वतंत्रता दे दी थी कि वो भारत में चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं. 550 राजवाड़े थे, लेकिन उनको भारत में मिला लिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन स्टेट्स. संविधान में हमारा कहीं भी फेडरल वर्ड नहीं आया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड हुआ. भारत राज्यों का संघ है. भारत कहीं कोई प्लेस नहीं है. अगर मैप में आप कहिएगा कि भारत शहर कहाँ है, तो भारत का जो नक्शा है पूरा, वो सभी 2800 राज्य जो मिल रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरीज सब जो मिल रहे हैं, सभी राज्य जो एक साथ हो जाते हैं तभी भारत कहते हैं. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. तो भारत के संविधान में कहीं फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो यूनियन ऑफ राज्यों का संघ है हमारा भारत, ये फेडरलिज्म के सिद्धांत पर ही काम करता है. यहाँ फेडरल सिस्टम ही गवर्नमेंट है. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव. आइए पिछले 7 लक्षणों को हम एक बार फिर देख लेते हैं जो फेडरलिज्म की व्याख्या करते हैं. We can see that all these features apply to the provision of Indian Constitution. और ये सातों के सातों जो प्रोविजंस है फेडरलिज्म कहलाने के लिए, वो हमारे संविधान में नहीं थे. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. The union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government. तो हमारे संविधान में ये सैद्धांतिक रूप से 2 स्तर की सरकारों का वर्णन किया गया है. एक है इस यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो पूरे देश का शासन चलाता है उसे यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और दूसरी लेवल की सरकार को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म was added in the form of पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. लेकिन बाद में चल करके एक तीसरे स्तर की सरकार को भी भारत में जोड़ा गया संविधान में कि तीसरे स्तर की भी सरकार रहेगी. गांवों के लिए पंचायती राज सिस्टम और शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन. जैसे सभी फेडरलिज्म में होता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट को अपना जुरिडिक्शन होता है, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनका टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन का, कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन चलाने का. उसी तरह से भारत में भी तीनों लेवल के गवर्नमेंट का अलग अलग व्यवस्था है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो भारत में संविधान में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि तीनों लेवल के स्तरों के लिए
क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या कानूनी रूप से उनको पावर है, वो किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं और कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपना शासन चला सकते हैं। तो अब इनको कानून बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो 3 लिस्ट में बने हुए हैं। पहला यूनियन लिस्ट includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency। तो ये राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर, देश के राष्ट्र से हित से जुड़े हुए विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जो देश के अंदर रहने वाले सभी राष्ट्र देशवासियों के हित से जुड़ी रहती है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे देश का विदेशी मामला हो, चाहे देश का बैंकिंग हो, चाहे देश में कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो, चाहे करेंसी की व्यवस्था हो। ये सारे चीजों का मैटर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का। They are included in this because we need a unitary policy on this matter throughout the country। चूंकि इसको यूनियन लिस्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसलिए दिया गया है क्योंकि इन विषयों पर पूरे देश में एक समान कानून रहेगा, तभी देश को चलाने में सुविधा होगी, इसलिए ये यूनियन लिस्ट के अंदर। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा, स्टेट लिस्ट contains subjects of states and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and agriculture। तो इसमें उस तरह के विषय आते हैं जो राज्य, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट राज्य से संबंधित हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, वहाँ का व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया। तो इस तरह के विषयों पर हर स्टेट को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार है। द स्टेट गवर्नमेंट्स the state governments central governments representing, अच्छा, the state governments forest, trade, union, marriage, adoption and succession, both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this। तो यहाँ पर कुछ कट गया है। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है कानून बनाने का। और इसमें आपका फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियंस आता है, मजदूर संघ आते हैं। फॉरेस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकती है। मैरिज पर मिलकर कानून बनता है। एडॉप्शन, उत्तराधिकार का कानून, गोद लेने की प्रथा, ये सब पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में आता है। बोथ द यूनियन एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विच इच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर ये कंकरेंट लिस्ट में जो विषय है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इन विषयों पर किसी कानून बनाने के मामले में कोई मगर मतभेद हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वही लागू। कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, अल्टीमेटली अगर विवाद की स्थिति आती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। What about subjects that do not fall in any of three list? तो यूनियन लिस्ट, सेंट्रल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अलावे भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं तो इन तीनों लिस्ट में नहीं आती है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, तो ये तो लिस्ट का निर्माण तब हुआ जब हमारे देश में संविधान बन रहा, लेकिन बहुत सारे देश में चेंजेज आ गए संविधान बनने के 70 साल में, बहुत नए नए विषय आ गए, जैसे अभी आपका साइबर क्राइम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर आ गया। तो इन सब विषयों पर कौन कानून बनाए? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects। तो इस residuary जो subjects है जिसका तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है वो सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर सकती है। We noted that above that most federations that are formed by the holding together do not give equal power to its constituent units। तो बहुत सारे ऐसे फेडरेशंस हैं, संघीय सरकार हैं जो होल्डिंग टुगेदर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितना पावर स्टेट्स गवर्नमेंट्स को नहीं देती है। हम यही देखते हैं कंकरेंट लिस्ट पर मतभेद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल चलेगा। दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो भारत में भी सभी राज्यों को एक समान अधिकार नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। कुछ राज्यों को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ था क्योंकि वो होल्डिंग टुगेदर रहे, देश से अलग ना हो जाए।
States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 171 के अंतर्गत कुछ सर्टेन राइट्स मिले हुए, स्पेशल पावर मिले हुए हैं। भारतीय संविधान में ही इनको पावर दिया गया है क्योंकि इनके कुछ विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक और जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो इनको पावर दिया गया है। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of the indigenous people, their culture and also preferential employments in government service. तो ये क्या स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं इन स्टेट्स को कि यहाँ की जो जमीन है ये यहीं के स्टेट्स के लोग खरीद सकते हैं, यहीं के निवासी लोग रह सकते हैं, देयर कल्चर मान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, देयर कल्चर एंड उनके संस्कृति की सुरक्षा होती है और सरकारी नौकरियों में उनको ज़्यादा तहरीज दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस देयर। अगर आप वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं तो वहाँ की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ घर नहीं बना सकते। ये ऐसा उनको सोशली कल्चरली उनको प्रोटेक्ट करने के सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसी तरह से भारत के कुछ अन्य स्टेट्स को भी इस तरह के पावर मिले हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियंस विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, लेकिन कुछ भारत के जैसे इस तरह के पावर मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, लेकिन जम्मू कश्मीर को ये पावर अब अभी रिसेंटली एबॉलिश कर दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर जो है स्टेट नहीं है, उसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है अलग अलग। तो अभी वहाँ नियम रिसेंटली चेंज हुए हैं और उसे स्टेट का दर्जा भी हटा लिया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियंस विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। भारत में कुछ ऐसे भी इकाई है, यूनिट्स है, जिनको बहुत कम पावर है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच would not be merged with any other existing state। कुछ इतने छोटे छोटे यूनिट प्रशासित क्षेत्र हैं, प्रशासन के क्षेत्र यूनिट है जो तो स्वतंत्र राज्य तो नहीं बन सकते हैं लेकिन दूसरे राज्यों के साथ उनको मिलाया भी नहीं जा सकता है। These are like चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसे ऐसे छोटे यूनिट्स को यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। These territories do not have the power of state। इनको राज्यों जैसी शक्ति नहीं है। राज्य का अपना मुख्यमंत्री होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीन नहीं होता है, वो अपनी शासन राज्य के अंदर अपने विषयों पर कानून बना के अपने हिसाब से चलता है, जो प्रोविजन उसको स्टेट्स लिस्ट में मिले हुए हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ऐसी बात नहीं है, उनको स्टेट से पावर नहीं होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस इंडिया। यूनियन टेरिटरीज के शासन चलाने में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरह। वहाँ ऐसे दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं लेकिन अभी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला है। तो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरह उनको पावर नहीं होती है, छोटे छोटे। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पावर शेयरिंग होता है, सत्ता का बंटवारा, पूरे देश का शासन एक आदमी तो चला नहीं रहा है, एक जगह से तो चल नहीं रहा है। कुछ विषयों पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चला रही है। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, आपका विदेशी मामला सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। लेकिन देश को चलाने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं और कुछ विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्रों में चलाते हैं। तो ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो जो पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, इसमें चेंज करना भी आसान नहीं। द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज देयर अरेंजमेंट्स। केवल पार्लियामेंट चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है, जुरिडिक्शन है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, वो तो संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फिर बाद में रेजिडुअरी लिस्ट, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में है कि किस पर कौन कानून बनाएगा। अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज। एनी चेंज टू बी इट्स टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटीज। तो संविधान में जो
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को जो पावर बताए गए हैं शासन चलाने के, अगर उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा से पावर्स होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से. देन इट हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, टोटल स्टेट. और भारत में जितने राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी उसे पास होना चाहिए. तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है, अगर उसमें किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव के लिए कोई एक आदमी, उसमें एक संस्था कोई कार्य नहीं कर सकती है. उसे दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, प्लस भारत के पूरे राज्यों में से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी पास होना पड़ेगा. The judiciary play an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. तो संविधान में जो वर्णित है इनके अधिकारों का, वो सही सही से पालन हो रहा है कि नहीं, इसकी निरीक्षण जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन. अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देती है. The union and the state have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the governments and the responsibilities assigned to each of them. तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, डेवलपमेंट वर्क करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट वर्क करना है, बहुत पैसे चाहिए. तो संविधान में इनके लिए वर्णन है कि वो कहाँ कहाँ से टैक्स लगाकर अपना पैसा इकट्ठा कर सकती है. Listen to the national and one regional news bulletin broadcast by All India Radio daily for 1 week. Make a list of news items related to the government policies or the decision by the classifying these into following categories. News item that relate only to the central government. News item that relate only to your any state governments. News item about the relationship between the central and state governments. Pokhran. The place where India conducted its nuclear test lies in Rajasthan. तो पोखरण एक ऐसा जगह है राजस्थान में जहां पर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था. देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से यूज करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए उसका पहले टेस्ट करना पड़ता है. तो टेस्ट निर्जन जगह पर होता है जहाँ कोई ह्यूमन बस्ती नहीं हो, फॉरेस्ट नहीं हो, जीव जंतु नहीं हो, तो डेजर्ट को चुना जाता है. तो भारत में 2 बार टेस्ट हुए हैं न्यूक्लियर टेस्ट. तो राजस्थान में पोखरण है, वहां पर टेस्ट के लिए जगह को चुना गया. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट. मान लीजिए कि राजस्थान में दूसरे पार्टी की सरकार हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम राजस्थान में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे. तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का मन नहीं है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट उसे रोक सकती है? नहीं रोक सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने का, डिसीजन लेने का अधिकार है. स्टेट गवर्नमेंट उससे नहीं रोक सकती है क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है. दूसरा, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन दिस स्कूल, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड द कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक. In that case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? तो अब एजुकेशन स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, अभी उसको यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन चल रहा है, तो उसमें अभी स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर है. टेक्स्ट बुक कैसे छापेगी, किस तरह का उसमें विषय देगी, किस तरह का पाठ पढ़ाएगी, उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अभी एजुकेशन का यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हो रहा है, सभी जगह एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है, इसको अब पॉलिसी चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फ्री है. सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसीज ऑन हाउ देयर स्टेट्स police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the Chief Minister will have to obey? देखिए, ये जो नक्सलाइट्स का जो प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, देश का आंतरिक मामला है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है. तो तीनों स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स बना सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट्स का भी रूल उन्हें पालन करना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट्स कोई ऑपरेशन चलाना चाहती है तो ये पालन पड़ेगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला. तो आंतरिक सुरक्षा का जब मामला है तो केवल एक स्टेट का यह मामला है नहीं, ये पूरे कंट्री का मामला बन जाता है. तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट तो रूल बना सकती है,
हेल्प कर सकती है, लेकिन कुछ रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे बना सकती है जिनको उनको मानना पड़े। ये देखिए 1947 में हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, तो इस तरह के इसमें स्टेट्स हुआ करते थे। उस समय बहुत सारे दूसरे स्टेट्स थे। राजस्थान की जगह राजपूताना था, मध्य प्रदेश की जगह सेंट्रल इंडिया था, मद्रास की जगह मैसूर दिख रहा है, बिहार था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश की जगह यूनाइटेड प्रोविंस था। तो इस तरह के स्टेट थे हमारे आज़ादी के समय। अब ऐसे स्टेट नहीं मिलते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? भारत में संघवाद का संचालन कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो संविधान में पूर्ण रूप से ये लिखा होना चाहिए कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के क्या अधिकार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए संघवाद के सफलता के लिए। नहीं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो सकती है। लेकिन ये संविधान में ही केवल लिखा हुआ हो जाने से संघवाद सफल हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सुफिशियंट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट्स हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज नॉट merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो केवल भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनली नियम बना देने से कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है, फेडरलिज्म सक्सेस हो गया नहीं। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हुई, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकारें बनी, उनके कारनामों के द्वारा भी फेडरलिज्म को सफलता में बहुत सक्सेस मिला। These ensured that spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideal in our country. तो इससे ये सुनिश्चित हुआ, फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है कि डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट हो, एक साथ रहने की भावना हो, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से इंश्योर हुई। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। तो कैसे कि मतलब फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है कि डाइवर्सिटी जो है वो किसी का मतलब सबका डाइवर्सिटी सम्मान किया जाए, किसी को दबाया ना जाए, पावर शेयरिंग करके सबके साथ एडजस्टमेंट किया जाए, एक साथ रहने की भावना को कायम किया जाए, देश की एकता और सुरक्षा को कायम रखा जाए। ये सब हमारे देश में कैसे हुआ? क्योंकि हमारा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी यूनिट को होल्ड करके रखना है, किसी को एक टूट कर अलग नहीं होने देना है। तो ये सब इतने डाइवर्सिटी वाले कंट्री में कैसे सफल हुआ? आखिर हमारे भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया जैसे ये सफल हुआ? क्योंकि इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। और कोई भी स्टेट कह सकता था कि हम भारत में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ विकास संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सफल हुआ, लोग एक साथ रहे, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट हुआ। तो ये कैसे सफल हुआ देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, पहले भाषाई आधार पर राज्य बने। द क्रिटेरियन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक सरकारें बनी, उनको संघवाद को सफलता के लिए पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इफ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of the changes. अगर 1947 से लेकर अभी 2019 के 2021 की बात करें, तो भारत की अगर आप डेमोक्रेसी के 50-60 साल के शासन व्यवस्था को देखेंगे तो आप देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित करेंगे। Many of old state has vanished and many new states have created. भारत में बहुत सारे पुराने राज्य जो 1947 में थे खत्म हो गए, उनका नाम बदल गया और बहुत नए नए राज्य बन गए। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट हैव चेंज। बहुत सारे राज्यों के क्षेत्र, उनके मतलब बाउंड्री, सीमा और नाम सभी बदल गए। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new state. तो 1947 में बहुत सारे पुराने पुराने राज्यों के सीमाओं को चेंज करके नए राज्य बना दिए गए। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. फिर राज्यों को नाम बदलने, उनकी सीमा बदलने और नए राज्य बनाने की बात क्यों आई? क्योंकि ऐसी चाहत थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो लोग एक भाषा बोलते हैं वो एक साथ रहें। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography. तो आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था। पुराने पुराने स्टेट्स का नाम चेंज किया गया, नए स्टेट्स बनाए गए
और इसमें पहली मंशा थी कि जो एक भाषा बोलते हो वो एक साथ एक राज्य में रहे। भाषा के आधार पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद कुछ स्टेट्स बने भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, उनकी नस्ल और उनके जोग्राफिकल कंडीशन के आधार। दिस इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो ये संस्कृति और भूमि की बनावट और उनके नस्ल के आधार पर इन राज्यों का गठन। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. शुरू में जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी आजादी के बाद से, तो कुछ नेताओं ने ये सोचना शुरू किया कि भाई तो होल्डिंग टुगेदर हमारा फेडरेशन चलेगा ही नहीं, कि कुछ राज्य अलग हो जाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे तो सभी जगह मांग उठने लगेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। जब नेताओं की चिंता हुई तो कुछ केंद्र सरकार कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का काम छोड़ दिया। बट द experiences has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. लेकिन बाद में ये चलकर देखा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो उससे भारत का संघवाद और मजबूत हुआ। होल्डिंग टुगेदर संघवाद हमारा और सक्सेसफुल हुआ। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव इजियर। इससे प्रशासन में भी सुविधा मिली। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति, भाषा के आधार पर राज्य बना, वो हमारे फेडरलिज्म के लिए पहला टेस्ट था, सफल हुए। दूसरा, भाषा की नीति क्या है, हमारा देश के लिए राष्ट्रीय भाषा कौन है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा है। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। भारत में कौन सी भाषा को अपनाया जाए, क्या श्रीलंका जैसा सेली भाषा को जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लैंग्वेज बना दिया था, क्या हिंदी को ऐसे ही लागू कर दिया था इंडिया में? Our constitution did not give the status of national language to any one language. तो हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी was identified as the official language. सरकारी काम के लिए राजभाषा, सरकारी काम के लिए हिंदी को अपनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं, सरकारी कामकाज के लिए सरकार की भाषा रहेगी। बट हिंदी इज मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन भारत में तो केवल 40% लोगों का ही मदर टंग है हिंदी। देयरफॉर देयर वाज मेनी सेफ स्टेट गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो फिर अन्य भाषाओं को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. तो 21 अन्य भाषाओं को भी संविधान में मान्यता दी गई। 8 शेड्यूल में है, भारत के अभी 22 भाषाएं हैं। लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑट टू मेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। तो अभी इसमें 21 लिखा हुआ है, 22 लैंग्वेज है। तो ये 22 लैंग्वेज में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम चलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी तैयारी करते हैं, तो आप इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप इन भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल, राज्यों की भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। बहुत सारे राज्यों की सरकारी कामकाज उस स्टेट के स्थानीय भाषा में होती। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a new cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका के समान नहीं, हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रसार के लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक कदम उठाया। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to be stopped in 1965. संविधान के अनुसार ये निर्णय लिया गया था कि इंग्लिश का जो सरकारी भाषा में यूज होता है 1965 आते आते इसे रोक दिया जाएगा। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. लेकिन बहुत सारे दक्षिण भारत के राज्य थे जो हिंदी उनका नहीं था मदर टंग, वो कहते थे कि इंग्लिश का यूज होना चाहिए, क्योंकि 1965 तक इंग्लिश का यूज बंद हो। आज हम देखते हैं इंग्लिश का यूज होता है सुप्रीम कोर्ट में, कचहरी में सारा तो इंग्लिश ही चलता है। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु के लोगों ने विरोध किया, इंग्लिश को स्टॉप नहीं करना चाहिए। The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सरकारी कामकाज की भाषा बनी। Many critics think that this solution favored the English speaking elite. कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि इंग्लिश बोलने वाले संभ्रांत लोगों को फेवर करने के लिए इंग्लिश का प्रयोग भारत में जारी रहा।
प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन भारत सरकार अभी भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती है और इसलिए भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह सितंबर महीने में मनाया जाता है। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi or states where people speak a differently. प्रमोशन का मतलब, बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स में जहां दूसरी भाषा बोली जाती है वहां पर हिंदी को लागू कर सकती है जबरदस्ती। The flexibility shown by Indian politics leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself. तो हमारे देश में इस तरह के सामंजस्य को लेकर चला गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। 1965 में इंग्लिश को रोक देना था, लेकिन तमिलनाडु के विरोध के चलते इंग्लिश को भी कायम कर दिया और अभी भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन कहीं पर लागू नहीं किया सकता जबरदस्ती। हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी सप्ताह सेंट्रल के कार्यालयों में बनाए जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका जैसी स्थिति हमारे देश में ना आ पाए। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब राज्यों और केंद्र के बीच संबंध कैसे रहे पिछले 60-70 सालों में सरकारों के बीच, उससे हमारा संघवाद किस तरह से प्रभावित हुआ, मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ, देखते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन द प्रैक्टिस। हमारे देश में सेंटर स्टेट का जो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप रहा है, संविधान में तो वैसे इनके लिए पूरा व्याख्या किया हुआ कि क्या क्या पावर है, फिर भी अगर दोनों स्तरों पर अलग अलग पार्टी की सरकार हो जाए तो फिर दोनों में थोड़ा सा मतलब सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। हर पार्टी को अपना पहचान और अपनी अच्छाई दिखानी होती जनता के सामने, इससे सामंजस्य नहीं बैठता पड़ता है। लेकिन इससे हमारा संघवाद मजबूत हुआ है। कैसे? हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। तो हमारे संविधान में जो पावर लिखे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, उसका पालन किस तरह से हो रहा है वो वहां के सरकारों के निर्णयों के, सरकारों के शासन करने के तरीके पर निर्भर करता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट। भारत में आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में सरकारें हुआ करती थी बहुत सालों तक, 30-40 सालों तक। This meant that the state government did not exercise their rights in autonomous federal units. संविधान में तो अलग से व्याख्या की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है, लेकिन सेंटर में भी कांग्रेस की पार्टी और स्टेट में भी कांग्रेस की पार्टी, तो कांग्रेस की सरकार हो, विपक्ष की पार्टियां थी लेकिन उनकी सरकार नहीं थी, विपक्ष की पार्टी थी, सरकार नहीं थी। तो अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जाकर स्टेट के लिए कुछ अलग डिमांड या स्टेट के कुछ अलग नियम कैसे लागू कर सकता था? जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी वो सेंटर में भी लागू होता था और स्टेट में भी लागू होता था। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर होते हुए भी वो अपने पावर को अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाती थी, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार की, एक ही पार्टी की सरकार होती, और मुख्यमंत्री तो फिर पार्टी हेड के कृपा पर ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो पार्टी लाइन से अलग जाकर स्टेट में अपने ढंग का नियम तो लागू कर नहीं सकते हैं। इसलिए जब तक इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी की रही, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर का उतना यूटिलाइजेशन नहीं किया। एंड as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. लेकिन जैसे ही स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी स्टेट गवर्नमेंट के पावर को दबाना चाहिए। संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर को दबाना चाहिए। अगर स्टेट में दूसरी की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी और सेंट्रल में कोई दूसरी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की थी या किसी दूसरी, in those days the central government would often misuse the constitutions to dismiss the state government that were controlled by rival. तो भारत में आजादी के बाद से देखा गया है कि बहुत सालों तक तो केवल एक ही पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। तो उस समय स्टेट अपने अधिकारों का खुलकर उपयोग नहीं करती थी, लेकिन जब स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हमेशा डिसमिस करने में, भंग करने में, कोई आरोप लगाकर उसको खत्म करने में ही दिलचस्पी लेती थी और ये अपने पावर का सेंट्रल यूज करती थी, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये हमारे फेडरलिज्म के मूल तत्व को नजरअंदाज करता है। लिविंग टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कोऑपरेटिंग ईच अदर, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ो, इसके ही अगेंस्ट था। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। लेकिन 1990 के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
क्या? दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। 1900 बाद के बाद भारत में बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनने लगी। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। और भारत में अब गठबंधन की सरकार का युग आया 1990। अब कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. सेंटर में भी कोई पार्टी 1990 के बाद अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। संख्या बल में कम होती थी। 543 सीट थी पूरे लोकसभा में, तो हाफ मेजोरिटी के लिए के पास उतने सीट नहीं होते थे। तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर के 3-4 पार्टियां मिलकर के सेंटर में गवर्नमेंट बनाती। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो एक नया दौर 1990 के बाद शुरू हुआ, जब एक नया संस्कृति आई पावर शेयरिंग का और स्टेट गवर्नमेंट का सम्मान करने का। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सेंटर में वो सेंटर गवर्नमेंट बनवाने में हेल्प करते थे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां थी। तो क्षेत्रीय पार्टी की सरकार स्टेट में होती थी और क्षेत्रीय पार्टी ही सहयोग करके सेंटर में गवर्नमेंट भी बनाती थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भंग नहीं कर पाती थी। 1990 के बाद ये नई कल्चर आई। दिस ट्रेंड वाज, अभी इस पिक्चर देखिए, जब एक पार्टी की सरकार होती थी तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस की पार्टी के सवार थी, इंदिरा गांधी जी खड़ी हैं, यहाँ सब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हैं। इनको संविधान में अपना पावर यूज करने का मिला हुआ है, लेकिन ये अपने पावर के लिए कटोरा हाथ में पकड़ के प्रधानमंत्री के पास गए हैं कि क्या मैं इस पावर का यूज करूं, क्या मैं ऐसा नियम बनाऊं, क्या मैं ऐसा लागू करूं। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा है, क्योंकि वे भी उसी पार्टी के हैं। वो मुख्यमंत्री की सीट पर तभी तक रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश रखेंगे। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक ही पार्टी की सरकार रही, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर का, मुख्यमंत्री अपना पावर का यूज अच्छा से नहीं किया गया। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया गया कि मुख्यमंत्री कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं। केरला है, हरियाणा है, यहाँ बंगाल है, ये सब भी लोग खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर बंगाल में तो कम्युनिस्ट की पार्टी थी। अब देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट, हियर आर टू कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जब 1990 मैंने 90 के पहले जब सेंटर और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट होती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रिलेशन था? स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑटोनॉमी का यूज नहीं करती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहती थी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार थी दोनों जगह। और यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है कोalition गवर्नमेंट, वाजपेयी जी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री है, लेकिन इनकी चेयर में देखिए कितने लोग क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग है। इनका चेयर में इतने क्षेत्रीय पार्टियों ने सहयोग किया, तब ये बने हैं सरकार। तो उस समय ये स्थिति। दिस ट्रेंड वाज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary way. तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया कि कोई भी अगर स्थिति ऐसी हो कि सेंटर में दूसरी पार्टी की सरकार हो, स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मनमाने तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को सकती है। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in early years after constitution came to it. तो आज भारत में संघवाद ज्यादा मजबूत है पहले के बनस्पत। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में भाषाई विविधता क्या है? हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया? देयर आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट इज। The latest information that we have is from the census of India held in 2011. The census recorded more than 1300 distinct language which people mentioned as their mother tongue. तो भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से 1300 अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते थे जो लोगों के मदर टंग थे। These languages were grouped together under some major language. For example, languages like Bhojpuri, Magadhi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani, and many other were grouped together under Hindi. Even after grouping, the census found 121 major languages. बहुत सारे छोटे छोटे लैंग्वेजों को मिलाकर एक जगह कर दिया गया, फिर भी 121 लैंग्वेजेस हैं। आउट ऑफ दिस 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज भाषा कौन है? भारत के एस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं शामिल की गई हैं। इसमें 22 भाषाएं हैं, ये आप देख सकते हैं।
शेड्यूल लैंग्वेज 22 में असमी 1.2%, बंगाली 8.3% और हिंदी है 43.63%। और हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा स्पोकन किया जा रहा लैंग्वेज है, आप वो देख सकते हैं, तेलुगु है 6.70% हिंदी के, और मराठी है उससे ज़्यादा 6.86%। मराठी है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। उसके बाद तमिल है 5.70%। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में वीक केंद्रिक। अब ये लोकल गवर्नमेंट की तय, अभी तक लोकल गवर्नमेंट का तो हम पढ़े नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर इस नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लेके अगर किसी थर्ड लेवल के गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक जगह से हटाकर उसको दूसरी जगह कर। We noted above the federal government has two or more level of government। सब लोगों ने ध्यान दिया है कि फेडरल सिस्टम में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट्स होती है। इफ वी हैव सो फार डिस्कस टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। अभी तक हम लोगों ने दो स्तर की सरकारों का डिस्कशन किया है। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो भारत में केवल दो स्तरों की सरकारों से काम चलने वाला नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में तो कुछ स्टेट्स यूरोप के कंट्री के बराबर हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। पॉपुलेशन के मामले में तो उत्तर प्रदेश रसिया से भी बड़ा, जबकि रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। मेनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और ये स्टेट्स आपस अंदर से भी काफी डाइवर्स है। दस देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो अब स्टेट के अंदर भी पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। भारत में संघीय व्यवस्था अब एक अन्य स्तर के सरकार की जरूरत महसूस करती है जो स्टेट के नीचे काम करे। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन पावर। सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए एक तर्क संगत बात है। दस रिजल्टेड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो भारत में एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है जिसे लोकल कहा गया। When power is taken away from central state government and given to local government is called decentralization। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब कुछ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local levels। लोकल गवर्नमेंट बनाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क है कि बहुत सारे ऐसे विषय और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, समस्याएं हैं, इश्यूज है जो लोकल पीपुल ही सुलझा सकते हैं। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकलिटीज। लोगों को लोकल इशू के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। लोकल व्यक्ति ही बता सकते हैं कि किधर सड़क बननी चाहिए, किधर ड्रेनेज बनना चाहिए, किधर स्कूल पहले प्राइमरी खोलना चाहिए, हमारी जरूरत पहले क्या है, कहाँ पौंड पहले खोदना चाहिए। तो लोकल इश्यूज को दूर से बैठकर हैंडल नहीं किया सकता है। लोकल इशू को लोकल पीपुल ही आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत महसूस है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently। लोकल पीपुल अगर किसी गांव में कोई समस्या है तो गांव के लोग उस समस्या का ज्यादा आसानी से हल बता सकते हैं। सरकार के ऑफिसर आएंगे और वो डेवलपमेंट वर्क करेंगे अगर उनको सहयोग करने के लिए लोकल व्यक्तियों का सहयोग लिया जाए, लोकल व्यक्तियों को चुन लिया जाए एक लोकल गवर्नमेंट बना करके, तो वहां का लोकल समस्या आसानी से सॉल्व हो सकता है। कि लोकल इशू को कहाँ सड़क बनेगी, इस रास्ते से सड़क बनाने से कम खर्चा आएगा, क्या होगा, वो लोकल व्यक्ति ही बता सकता है। तो इसीलिए लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल इश्यूज को आसानी से सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत महसूस है। दिस हेल्प टू दिस हेल्प टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का भी मौका मिला। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नॉर्मली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने में ये डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट काफी सहयोग। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन को हमारे संविधान में भी मान्यता मिली हुई है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। और संविधान में ये प्रयास किए गए हैं अमेंडमेंट्स ला करके कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर को अब लोकल लेवल तक बढ़ाया जाए। पंचायत्स इन villages and municipals in urban areas were set up in all the states। तो डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट बनाने में पहला प्रयास हुआ कि गांव में पंचायत बनाया गया और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई। बट देयर वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट में, लेकिन ये सीधे से स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया पंचायत गांवों के लिए और
म्यूनिसिपैलिटी शहरों के लिए, लेकिन ये शुरू शुरू में ये स्टेट गवर्नमेंट का दिन होता था। इलेक्शंस टू द दिस लोकल बॉडीज वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इन लोकल गवर्नमेंट के बनाने के लिए हर 5 साल पर लगातार चुनाव नहीं होते थे, स्टेट गवर्नमेंट करवाती नहीं थी। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट को ना अपने कुछ पावर होते थे और ना उनके पास अपने पैसे होते थे डेवलपमेंट के लिए। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव मैन टर्म्स। तो शुरू शुरू में भारत में डिसेंट्रलाइजेशन काफी इफेक्टिव नहीं था। A major step towards decentralization was taken in 1992। तो डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट को और मजबूत करने में, लोकल गवर्नमेंट को और तर्क संगत रेशनल बनाने में 1992 का साल काफी महत्वपूर्ण रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर पावरफुल इफेक्टिव। तो संविधान में संशोधन किया गया 1992 में और इसको ज्यादा मोर पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया लोकल गवर्नमेंट को। नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। तो अब 1992 के बाद अब हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने लोकल बॉडीज के लिए हर 5 साल पर चुनाव कराना आवश्यक है। और देखिए बिहार में अभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल हो जाने पर, फिर उस तरह म्यूनसिपैलिटी के भी चुनाव होंगे 5 साल हो जाने पर। अब हर स्टेट को लोकल गवर्नमेंट्स का लोकल बॉडी का चुनाव कराना है। 1992 के बाद ये फिक्स हो गया। शुरू शुरू में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत बने थे, लेकिन उनको अपने कुछ पावर नहीं होते थे, उनको अपने कुछ रिसोर्स नहीं होते थे, स्टेट गवर्नमेंट उनका इलेक्शन नहीं कराती थी। लेकिन 1992 के बाद इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और ये मैंडेटरी किया गया कि अब उनको हर 5 साल पर इलेक्शन कराने हैं, उनको मोर इफेक्टिव और पावरफुल बनाया गया। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और इस लोकल गवर्नमेंट में भी जो चुनाव होते हैं उसमें SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, डिफरेंट सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप का भी पार्टिसिपेशन। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। इस लोकल गवर्नमेंट में जो बहुत सारे पोस्ट है उसका 1/3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए भी इसमें काम, 1/3 सीट उनके लिए भी रिजर्व किया गया। एन इंडिपेंडेंट institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। तो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन हर 5 साल पर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि हर स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया। ये क्वेश्चन आया भी था अभी। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के MP का चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माने रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम या म्यूनिसिपैलिटी के लिए आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ। अभी बिहार में स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है पंचायत चुनाव। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने कुछ अधिकार और कुछ राजस्व आमदनी वो लोकल गवर्नमेंट को। अभी देखो बिहार में जितने भी टीचर्स की बहाली हुई है अब वो पंचायत और म्यूनिसिपल के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है, और राज्य सरकार उनको अनुदान देती, पैसा देती। द नेचर ऑफ शेयरिंग वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट में, स्टेट्स में कुछ से कुछ इसमें वैरीज भी होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो ग्रामीण जो स्थानीय सरकार है उसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। पंचायती राज होता है, ये 3 लेवल पर होता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत। तो एक गांव बड़ा होता तो एक ग्राम पंचायत होगा, या छोटे छोटे 2-3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। तो ये ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है, गांव को अलग अलग छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है और उसे वार्ड मतलब पंच भी कहते हैं। हाँ, और बाद एक प्रेसिडेंट होता है और सरपंच होता है। तो पंच और सरपंच को मिलाकर के ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पीपल लिविंग इन दैट वार्ड। तो इनका चुनाव उस वार्ड में रहने वाले सभी 18 साल से वयस्क लोगों के द्वारा होता है। इन विलेज इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत जो है वही डिसीजन मेकिंग बॉडी है गांव के विकास के लिए। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। लेकिन ग्राम पंचायत में तो चुने हुए व्यक्ति होते हैं, पंच होते हैं, सभी मोहल्ले के एक पंच होते हैं, फिर एक सरपंच होता है। ये तो हर वार्ड से चुन कर आते हैं और पंच लोग, और इनको गांव ग्राम सभा के डायरेक्शन के अंदर काम करना पड़ता है।
ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इस, तो ग्राम सभा किससे बनता है? तो गांव के 18 साल से उम्र के ऊपर के सभी पुरुष और महिला मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं और ग्राम सभा की मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में डिसीजन होता है कि गांव में विकास का कार्य कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा। इट हैज टू बी मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो कहने का मतलब साल में 2 या 3 बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। 18 साल से वोट देने वाले जितने भी व्यक्ति हैं ऊपर के, वो ही ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और ग्राम सभा साल में 2 या 3 बार बैठनी चाहिए कि ग्राम पंचायत का कितना बजट पास होगा और वो गांव में कैसे कार्य कर रही है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये लोकल गवर्नमेंट ग्राम लेवल तक ही नहीं है, बल्कि ये ग्राम से लेकर ब्लॉक समिति तक और फिर ब्लॉक से लेकर जिला परिषद तक जाती है। ग्राम पंचायत सिस्टम 3 लेवल पर है। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, और 2-4 गांव मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं, वो ब्लॉक लेवल पर, और फिर ब्लॉक से ऊपर जाता है तो जिला परिषद। A few gram panchayat are grouped together to form what is called a पंचायत समिति और a block और a मंडल। तो गांव लेवल पर ग्राम पंचायत और 2-3 पंचायत मिल गया तो वो ब्लॉक लेवल पर वो ब्लॉक समिति कहलाएगी या मंडल कहलाएगा, क्योंकि गांव का पैसा ब्लॉक से ही आता है, वीडियो साहब के थ्रू आता है। तो अब पैसा जब आता है तो ब्लॉक समिति के थ्रू से अब गाँव में आएगा। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाई ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। तो 2-3 पंचायत मिलकर जो ब्लॉक समिति बनाते हैं ब्लॉक लेवल पर, वहां के सारे वोटर उस ब्लॉक समिति के मेंबर को चुनते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब एक जिले के अंदर जितने भी पंचायत समिति या मंडल्स हैं वो एक साथ मिलकर के जिला परिषद बना, और मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और जिला परिषद के सारे मेंबर इलेक्ट हो गए। Members of the Lok Sabha and MLAs of the district are some other official of the district level bodies और also call its member जिला। तो जिला परिषद में लोकसभा के भी मेंबर उसके समिति में मेंबर होते हैं, एमएलएस भी उसके मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला। तो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है परिषद का, वो चुनकर आता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। तो शहरों के लिए भी लोकल गवर्नमेंट्स होती है। म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। तो शहरों में म्युनिसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट होती है। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बड़ों शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज और बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो भी इलेक्टेड बॉडी, मतलब लोगों, चुने हुए लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्युनिसिपैलिटी का चुना हुआ प्रतिनिधि हेड होता है। इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड ए मेयर। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसे मेयर कहते हैं, जैसे आरा म्युनिसिपल। Prime Minister runs the country, Chief Minister runs the state, local. Then the chairperson of Jila Parishad should run the district. Why does the DM or collector administrate the? So in this way, this new system of local government in a largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. तो भारत में ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये अपने तरह का एक अनोखा लोकल गवर्नमेंट है। There are now about 36 लाख elected representative in the पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। भारत में सारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में लगभग 36 लाख लोगों को चुना जाता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। द नंबर इज बिगर देन इवन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये नंबर अपने आप में ही बहुत सारे देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो लोकल गवर्नमेंट के निर्माण ने हमारे देश में संविधान और प्रजातंत्र को मजबूत किया है। इट हैज आल्सो इंक्रीज वोमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के अधिकारों का मैंने प्रोत्साहन किया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। लेकिन फिर भी लोकल गवर्नमेंट्स में काफ़ी समस्याएं हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इलेक्शन हर 5 साल पर होते हैं और बहुत उत्साहपूर्वक होते हैं, लेकिन ग्राम सभा के मीटिंग हमेशा गांव में नहीं होती है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो ट्रांसफर
सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारों को लोकल गवर्नमेंट को पास नहीं किया है। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्स, और नहीं ज़्यादा संसाधन दिए हैं। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के सच्चे फॉर्म में अभी आने में समय लगेगा। So okay, in this way we come to the line by line expression of this chapter.